من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوّبی مَعَهُ وَالطَّیرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ سبا کے یہ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں، مکی دور کی آیات ہیں اور مکی دور کے بھی وسطی حصے سے بھی پہلے زمانے کی۔ اہل مکہ کو طرح طرح سے سمجھایا جا رہا ہے، جو وہ مختلف قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے آخرت کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس نازل ہونے والے کلام کے حوالے سے۔ اب انہیں کچھ اور ہستیوں کے حوالے سے نصیحت کی جا رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جو اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا، پیغمبر کے منصب پر فائز کیا، اور غیر معمولی قوتیں، صلاحیتیں بھی اللہ نے ان کو عطا کی۔ یہ سبق دینے کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، ان سب چیزوں کے باوجود وہ اپنے رب کے انتہائی شکر گزار تھے۔ انہوں نے غیر معمولی نعمتیں پا کر اللہ کے ساتھ ناشکری نہیں کی، بلکہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کو ہی اپنے لیے انہوں نے قابل فخر سمجھا۔ تو بات کی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ دیکھو ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت فضل عطا کیا تھا۔ حضرت داؤد فلسطین ہی کے رہنے والے قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، ایک معمولی قسم کے انسان تھے۔ ایک جنگی معرکے میں انہوں نے بہت کمالات دکھائے اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا، جس کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل کی قوم کے بہت برگزیدہ، بہت قابل قدر انسان بنے۔ اور پھر طالوت کی وفات کے بعد ان کو بادشاہ منتخب کر لیا گیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو بھی اپنی طرف سے بہت فضل عطا کیا تھا۔ یا جبال اوّبی مَعَهُ، اور پہاڑوں کو ہم نے حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرو، وَالطَّیرُ، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا تھا۔ یاد رہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی، زبور، اور جب یہ تلاوت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی تو ایسا ماحول طاری ہو جاتا تھا کہ پہاڑ اور ہم آہنگ ہو جاتے ان کی اس تلاوت میں، گونج اٹھتی تھی وادی، اور اسی طرح سے پرندے بھی اکٹھے ہو جاتے، وہ بیٹھ جاتے تھے آ کر، وہ بھی ان کے ساتھ اس تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ اب یہ صلاحیت کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بہت خوش الحان تھے۔ ایک مرتبہ وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے، اور آپ علیہ السلام نے جب ان کی تلاوت سنی تو آپ ٹھہر گئے اور کافی دیر تک سنتے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد کے
लहन में से इनको भी हिस्सा दिया गया है। यानी इस तरह से खुशहाली थी हज़रत अबू मूसा अशरी को भी। तो फरमाया व अलन्ना लहुल हदीद, और इसी तरह हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को भी नरम कर दिया था। हम तो लोहे को इस्तेमाल करने के लिए गर्म करते हैं, फिर उसको ढालते हैं, पिघलाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को इस तरह नरम कर दिया था कि वो जिस तरह चाहते उसको मोड़ लेते थे। अनेमल साबिगात, और ये हुक्म दिया था कि ज़िरें बनाओ, यानी जंग के लिए जो एक ख़ास अपने दिफा के लिए चेहरे पर सर पर ओढ़ा जाता है टोपी की तरह से, एक इस तरह की ज़िरें तैयार करो, और उसके साथ कड़ियाँ लटकाई जाती हैं ताकि दुश्मन के वार से चेहरा महफूज रहे। और ये ताकीद की थी वक़द्दिर फिर सर्द, और कड़ियों को ठीक अंदाजे पर रखो, यानी कि वो रुकावट भी ना बने लड़ाई में और दिफा भी हो सके चेहरे का। वामलु सालिहा, और ये नसीहत कि देखो नेक अमल करो, यानी ये है असल काम मोमिन का कि हर अमल में वो अल्लाह की रज़ा को पेश नज़र रखे। तो जब वो अल्लाह की रज़ा को पेश नज़र रख कर काम करेगा तो वो नेक अमल शुमार होगा, अल्लाह ताला उसको साले अमल करार देता है। इन्नी बिमा तामलून बसीर, और ये भी अल्लाह ताला ने वादे फरमा दिया कि देखो जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो देख रहा है, यानी अल्लाह की निगाह से पोशीदा नहीं है कोई अमल किसी का, अल्लाह ताला बराह रास्त हर एक के अमल पर निगाह रखे हुए है। और फिर हज़रत सुलेमान का जिक्र किया जो हज़रत दाऊद के बेटे थे कि भले सुलेमान अर्रीहा, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, तेज़ हवा यानी उन के लिए मुसख्खर कर दी गई। बहरी बेड़े जो होते हैं, बादबानी कश्तियाँ बड़ी बड़ी, उनकी हरकत का इन्हिसार बाद मुवाफिक पर होता है कि अगर हवा मुवाफिक हो तो कश्ती बड़े सुकून से सफ़र तय करती चली जाती है, आसानी होती है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तेज़ हवा को भी मुसख्खर कर दिया था। गुदुव्वुहा शहरुन, सुबह के वक्त 1 माह की राह तक चलना, व रवाहुहा शहर, और शाम के वक्त 1 माह की राह तक सफ़र तय करना, यानी वो सफ़र करते 1 महीने की मुसाफत तक हवा उनके मुहाफिक चलती रहती सुबह के वक्त, और जब वापसी होती तो शाम के वक्त दूसरे रुख पर, और उनको सहूलत होती थी तिजारत में। वह असलना लहू ऐनल कित्र, और उसके लिए हमने तांबे का चश्मा जारी कर दिया। तांबे का चश्मा यानी तांबा भी एक कीमती धात है जिससे मुख्तलिफ किस्म के बर्तन और चीज़ें बनती हैं। तो अल्लाह ताला ने ये सलाहियत भी उनको अता कर दी। व मिनल जिन्नी, और इसी तरह से हमने जिन भी उनके ताबे कर दिए थे, हज़रत सुलेमान के जिन्नात को उनके ताबे कर दिया था। मैं यामलू बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिही, जो अपने रब के हुक्म से उसके आगे आगे काम करते थे, जो काम वो चाहते जिन्नात से लेते थे। वमन यज़िग़ मिनहुम अन अमरिना, और उनमें से जो भी कोई हमारे हुक्म से सरताबी करता, नुज़िक़हु मिन अज़ाब सईर, तो हम उसे आग के अज़ाब का मज़ा चखाते। यानी जिन्नात भी आगी मखलूक है, यानी आग से बनी हुई है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर उनमें से कोई भी हुक्म से सरताबी करता तो हम उसे आग के अज़ाब का मज़ा चखाते। यामलून लहू मा यशाउ, और वो उसके लिए वो काम करते जो वो चाहता था। यानी इस तरह से हमने हज़रत सुलेमान के ताबे कर दिया था जिन्नात को। मिन महारिब, और वो उसके लिए तैयार करते थे बड़ी आलिशान इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से तामीर कर देते थे।
و तमासील, और उन पर बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाते, व जिफ़ान कल जवाब, और इसी तरह से बड़ी बड़ी यानी हौज जैसे लगन तैयार कर देते थे। व कुदूर रासियात, और ऐसी देगें जो एक जगह कायम रहती थी, यानी जो मुंतकिल नहीं होती थी। यानी जिन्नात इतनी बड़ी बड़ी देगें कि उनमें खाना तैयार करते थे और वो लंगर तकसीम होता था। इतनी बड़ी देगें कि जिनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुमकिन नहीं था, आसान नहीं था। तो इतने बड़े बड़े यानी हौज की तरह के लगन बनाते थे, इतनी बड़ी देगें होती थी, उनमें खाना तैयार होता था। ए मलू आल दाऊद शुक्रा, इस नसीहत के साथ कि ए आल दाऊद शुक्र का अमल करो, यानी तुम्हारे हर अमल से अल्लाह का शुक्र वो वाज़े होना चाहिए। यही नसीहत हमारे लिए है। अल्लाह ताला हमें जो भी सलाहियत अता करे, जो भी नेमत अता करे, अल्लाह के शुक्रगुजार हो, ना ये कि इतरा कर अल्लाह की शुक्रगुजारी से बाहर निकल जाएं और हम अपने आप को कुछ से कुछ समझने लग जाएं। कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी इंसान को हासिल है वो सब अल्लाह का अता करता है, वो अल्लाह की करम नवाजी है, इसलिए अल्लाह के शुक्र पर अपने आप को कायम रखें। तो ये नसीहत की जा रही है अहले मक्का को कि तुम जो बड़ा फ़ख्र करते हो अपनी इस बात पर कि हम खाना काबा के मुतवल्ली हैं, हम इसके देखभाल करते हैं, हम हाजियों को पानी पिलाते हैं, और हज के मौका पर अपने आबा व अजदाद के बड़े किस्से बयान किया करते थे, बड़े उनके कारनामे बयान करते थे। अरे इससे क्या फ़ायदा? असल चीज़ तो अल्लाह की इताअत है, अल्लाह की बंदगी है। अगर तुम्हारे बुज़ुर्गों ने अल्लाह की इताअत और बंदगी की है तो फिर उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह से वो इसका बदला लेंगे। और तुम अगर अल्लाह की इताअत और बंदगी अख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी महरूम नहीं करेगा, दुनिया में भी इज़्ज़त देगा, आखिरत में भी तुम्हें इज़्ज़त देगा। ये नसीहत की गई अहले मक्का को, और इस हवाले से तमाम इंसानों के लिए है, क़यामत तक के लिए, कि फ़ख्र की कोई बात है तो वो यही है कि अल्लाह की इताअत और बंदगी में रखो, गुरूर और तकब्बुर से बचो, और अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से हर आन महफूज रखो। जो भी नेमत हासिल हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और शुक्र में इतनी बरकत रखी अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। यानी शुक्रगुजारी नेमतों में इजाफे का बाइस बनती है। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और याद रखो अगर नाशुक्री करोगे, कुफरान नेमत करोगे तो मेरी सज़ा भी बड़ी सख्त है, मेरी पकड़ भी बहुत सख्त है। अल्लाह की पकड़ से अपने आप को बचाने का तरीका यही है कि अल्लाह का शुक्रगुजार बनकर रहे। अल्लाह ताला हम सबको आयात को समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वअदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूफ़ुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। या क़ादिल हाजात इक़्ज़ हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।